أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Now I'm through some of the guidelines for the Fcps part 1, and this is session 5. I'm Professor S. Ali Heather, and I'm a senior visiting professor of medicine at the Sindh Medical University, Karachi. Just guiding to you about the part 1 examination. Although I am not the correct man for this, I'm the senior examiner and the supervisor for Fcps part 2 examination. But what I know about how to do it, ideally, I can guide you. Although there are classes organized in the different institutions as well as in CPSP also for the FCPS part 1 examination. And there are certain private institutes and tutors available in Karachi and other major cities of Pakistan. Actually, this depends upon the interest of the candidate and the background basic knowledge. What you have done in first professional and second professional MBBS, if you have done it on the correct path previously, and you have those material available with you, which were marked at one time for the preparation of the examination. I said that you follow the books or the material you have and then try to go for the MCQs, practicing MCQs. Because at one time we have made MCQs for FCPR part 1 examination at one time, long before. There are certain, experiences gained by me. And also I have studied the MCQs appeared in the USMLE examinations. Although in European examination, the basic subjects are not asked like this. All part 1 and part 2 examination of European style, they are always clinical based. Practical basis are the requirements for their examination. For our examination, or in the USMLE examination, the provisional or the primary or whatever you said, the knowledge should be there. I was already talking about it previously. Now today I want to show you something else. That is called distractors in the MCQs. Distractors. Now these distractors are the wrong answer actually in the multiple choice question, and they distract you to choose the correct answer. Correct option. To choose correct option is a difficult task. When you are confident, you can choose. Otherwise, distracted options are there in the multiple choice question. There is standardization that 1 or 2 distractors should be there in every MCQ to distract the candidate, to confuse the candidate, in other words. For example, if a scenario is given and multiple choice question in which the correct answer was the game cricket,
And then we need to generate the wrong choices. Distractors, there are wrong choices, of course, like football or golf or the bowling or the ultimate frisbee. They are very, very near. For example, something was given in the STEM, that the people are going for the play, and they have written what they are doing there in the open field, and they said that they were, what they are doing is the game which is the correct game for this STEM or this scenario. The very, very near is football and the golf and ultimate frisbee or bowling, cricket. Cricket is the correct answer. And the distractors are there, they are very near to it. Golf, frisbee, ultimate, or bowling. Something throwing type of a thing was actually written in this type of question, and they are very near because throwing activities can be seen in these all games. But throwing activities are very, very important in cricket. So cricket is the correct answer. The distractors are there. The examiners, they want that the candidate will be confused if he is not confident. Another one is this one. This is me. Now, closed choice options, distractors, make us double-minded to opt wrong answers, forcefully, wrong answers. No, I will not answer it. You will answer it. I will not answer it. If you want to give the answer, you know my number. The MIP.me, this is the group. You can answer on the MIP.me, or you can answer on WhatsApp number which I have given to you. I will not answer. They are very close. Professor Ali Azhar is option A, Muslim, B, physician, C, Pakistani, D, clinical cardiologist, and E, Professor Emeritus. Now these are all seems to be correct answers. Very correct. You have to negate them one by one, and that option which has the most probable one, in giving you the choice or the percentage is concerned, you choose this option. It will be correct then. Otherwise, very close, they are very close. So very close options are very difficult to answer. Actually, the Harrison textbook of medicine, there is a group who had made the MCQs from the Harrison textbook of medicine. The most difficult MCQs ever generated by anybody in the world. They are very, very, very close. Distractors are there, and you have to choose. When I was giving the examination for the license as a consultant in Saudi Arabia, there are two parts of the examination, 75 and 75. So the distractors were there, and there are very close choices at that time in this examination, very close. Those people who actually followed the pool system, they know that many of the MCQs will again reappear. They are going and picking those MCQs, but I had no previously no experience of it. I don't want to do like that.
Before beginning that examination, because I was the examiner also in Pakistan, and I passed the Fcps examination, very, very difficult way, and I had got the clinical experience of more than, at that time, of more than 25 years. Before beginning that paper, I assumed that I should obtain 95% score if I was passed correctly in the FCP examination. That was assumption. That was. But when I tried to do it, there was a very, very difficulty. The distractors are there, very close choices. 20 to 30% of the candidates were boycotted the examination. उन्होंने कहा जी ये तो जुल्म है, ये सवाल ही नहीं पता होता, चले गए वो छोड़ के। मिस्र के थे, कुछ इधर के थे, जॉर्डन से थे, इधर के। उन्होंने कहा भाई ये क्या मजाक बनाया है, सीधी सीधा सवाल करो और सीधा सीधा जवाब दो, आपने इतनी क्लोज चॉइस दे दी है कि आप उठा ही नहीं सकते। फिर पता है मैंने क्या किया, मैंने अपने जहन में मैंने हैरिसन को जो है ना घुमाना शुरू किया, वो पेजेस वहाँ से निकाल के वो करना शुरू किया। और दोनों पेपर जो थे उनके, वो 3 घंटे के पेपर थे, वो मैंने 2 घंटे में कर के बराबर कर दिया और वापस रिपीट भी नहीं किया। जब उसके मैनेजर ने कहा रिपीट कर लो, तो मैंने कहा ये रिपीट नहीं होता है इसमें। उसने 10 मिनट और बैठना पड़ेगा, फिर आप जा सकते। तो 10 मिनट और बैठना पड़ गया, 2 घंटे 10 मिनट। उसके बाद मैं बाहर आया तो जो मैनेजर जो मुझे लेके आया था ये एग्जामिनेशन दिलाने के लिए, दैट मैनेजर मुझसे कहा, वो सो रहा था, मैंने उठाया वापस ले जाने के लिए। तो उसने कहा भाई अभी कैसे बाहर निकल आया, क्या आपको उसमें जाना है, लेट्रिन वगैरह? मैंने कहा नहीं मुझे कोई वॉशरूम लेट्रिन नहीं जाना, मैंने करना था तो कर दिया। और मैंने उनको बहुत सुनाई जिन्होंने ये पेपर तरतीब दिया था। मैंने कहा ये बहुत ही 3rd क्लास लोग हैं। तो उन्होंने कहा यार आपने मेरे पैसे डुबवा दिए, मैंने आपसे बोला था कि आप MCQ बैंक जो होता है इनका पूल होता है वो आप पढ़ लें। 2 दिन पहले मैंने ला के भी दिया था। मैंने कहा वो तो वैसे ही रखा हुआ है, उसको क्या ज़रूरत है, मैं तो खुद MCQ बनाता हूँ। कहना कहा बनाते हो कि भाई यहाँ पे तो बस पास करना होता है ताकि आपको लाइसेंस मिल जाए, बात ख़त्म हो गई। तकरीबन 15 दिन के बाद जो है वो बंदा जो था मैनेजर जो इंस्टीट्यूट का था वो आया मेरे पास, कहने आप क्या बोल रहे थे? मैंने कहा क्या बोल रहा था? मैंने तो ये बताया था मैं कर आ गया, ये जो करना था कर दिया, 2 घंटे में पूरा कर दिया, जो आना था मुझे आता था मैंने कर दिया। तो वो कहने लगा कि आप तो खैर क्लियर हो तो गए हैं, आप पास हो गए हैं, आपको बना दिया, इस्तिशारी बना दिया या कंसल्टेंट रिकॉग्नाइज कर दिया है, साथ साथ लेबल भी कर दिया उन्होंने कि आप MD हो गए हैं, ये भी लेबल कर दिया उन्होंने। लेकिन आपका क्या ख्याल है, आपका कितना स्कोर होगा? मैंने कहा मुझे नहीं पता, और फिर भी अज्यूम करें ना। मैंने कहा होगा 60-70% हो सकता है। और कहने लगा आपका स्कोर जो है वो 95% से ज़्यादा है भाई, और आप कह रहे हैं कि बकवास है, ये रविश है, और पता नहीं क्या क्या आप बोल रहे थे। मैंने कहा स्टैंडर्ड मैं बात कर रहा था, जो स्टैंडर्ड है वो इतना क्लोज है, देखें ना क्लोजिंग देखें इसकी, ऑप्शन बहुत क्लोज हैं, आपको दोहराना पड़ेगा, एक ऑप्शन को पिक करना पड़ेगा, बहुत मुश्किल काम है। तो इसलिए बड़ी डिफ़िकल्टी हो रही थी। तो मैंने दोहरा के अपने जहन में हैरिसन के पेजेस को वो मैंने फिर वो सारे MCQ अटैम्प्ट के लिए सारे के सारे 150 के 150, लेकिन मुझे था कि ये गलत हो जाएंगे क्योंकि उसमें जो है ना उन्होंने स्टैटिक्स भी दे दी थी, तो वो तो मुझे नहीं मालूम थी इतनी, लेकिन बहरहाल मैंने कोशिश करके कर दिया। वो कहने लगा कमाल हो गया, ये तो गोल्ड मेडल परफॉर्मेंस है और आप इतने नाउमीदी से बाहर निकल आए। मैंने कहा नाउमीदी की बात नहीं है, बात ये सेटिस्फेक्शन की बात है। मैंने कहा जिन लोगों ने पेपर तरतीब दिया है तो उनको आता नहीं है किस तरह से इसको लेते हैं, किस तरह बनाते हैं, उनको पता ही नहीं। इतनी क्लोज चॉइसेस दे दी उन्होंने, लोग बायकॉट भी कर गए, 2 कैंडिडेट बाहर चले गए, उन्होंने नहीं किया उसको। चला सर बहरहाल जो होना था वो हो गया। तो
मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आई थिंक इट इज़ कि क्लोज चॉइसेस होते हैं ना, जब उसमें आदमी डबल माइंडेड होता है, वो खुद डिस्ट्रक्टर दे रहे होते हैं। जैसे वेरी क्लोज चॉइसेस ये वही वाली हैं जो मैं की हैं, मैं मिसाल दे के बता रहा हूँ, क्योंकि ये मेडिकल MCQ नहीं है, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना वाज फादर ऑफ नेशन, ये जवाब आपको देना होगा। बी है लॉयर, सी है मुस्लिम, डी है परफेक्ट लीडर ऑफ मुस्लिम्स, और ई है बरीड इन कराची। इसमें से जो है ना वो सारे के सारे सही हैं। इसी को BCQ कहते हैं, बेस्ट ऑफ क्लोज चॉइस जो कहलाता है क्वेश्चंस, ऑप्शन जो होता है बेस्ट ऑफ। लेकिन इतना भी नहीं आप डिस्टर्ब करें आदमी को कि वो आदमी परेशान हो जाए इसको देख के, भाई इसमें से क्या मैं चूज़ करूँगा, मुझे बताएं। तो ये आपको देखना होगा इसके कितने मार्क्स आप दे रहे हैं, इसको कितने 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 दे रहे हैं। तो आप जो है वो मुझे बताइएगा कि भाई ये मोहम्मद अली जिन्ना वाज द फादर ऑफ द नेशन वाला सही था, या लॉयर था, या मुस्लिम था, परफेक्ट लीडर मुस्लिम था, या बरीड इन कराची था। ये ज़रा सा गौर से देख लें और फिर इसका जवाब दीजिए। जो अफराद हैं जो हमारे साथ शामिल हैं, 3-4 लोग हैं ये, उनके लिए ये जो बज़म सजाई जा रही है। अब फर्स्ट एग्जांपल जो है ना, अगर आप इसमें से लेते हैं हमारी फील्ड से, जैसे पार्ट 1 में फील्ड होती है, मैंने आपसे पहले भी बताया था, वो डायरेक्ट क्वेश्चन करना नहीं चाहते, वो इनडायरेक्ट पूछेगा आपसे। जैसे अच्छा ये पूछ रहा है विदाउट सिनेरियो कि WBC इन स्टूल RE या DR एग्जामिनेशन डिटेल रिपोर्ट सिग्निफाइज, क्या सिग्निफाई करती है? ए ऑप्शन है नथिंग, मतलब ये इसके आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तादाद नहीं लिखी हुई है। ये लिखा रहा है WBCs, ये भी नहीं बता रहा है कि न्यूट्रोफिल्स हैं, ये भी नहीं बता रहा, कुछ भी नहीं बता रहा है। ये तो बोल रहे WBC इन स्टूल RE सिग्निफाइज नथिंग, B इंटेस्टाइनल एमेबासिस, C शिगलोसिस बैसिलरी डिसेंट्री, यानी D है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, और E है क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसिल एसोसिएटेड डायरिया। ये वो क्वेश्चन था जो उन्होंने वहाँ इस टाइप का दिया था सऊदी अरब में। इतने क्लोज ऑप्शन है यहाँ पे, देखें। अब ये भी नहीं बता रहे कितने हैं, ये भी नहीं बता रहे हैं, RE सिग्निफाइज बोल रहे हैं, सिग्निफिकेंट है यानी नथिंग, कुछ भी नहीं है। इंटेस्टाइनल बेसिस में भी WBC आ सकते हैं, शिगलोसिस में भी आ सकते हैं, IBD में भी आ सकते हैं, CDAD में भी आ सकते हैं। लेकिन इसकी सबसे इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेशन जो है वो इन डिजीज़ में एक में है, बहुत इसकी इम्पोर्टेंस है। तो वो ही सही आंसर होगा इसका। इसके मार्क दें, इसको मार्क दें, इसको मार्क दें, इसको मार्क दें, इसको मार्क दें। तो इसका जवाब भी आप ही दीजिए, मैं बता दूंगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर एक और एग्जाम्पल आपको दे देते हैं कि रेडिएशन ऑफ पेन फ्रॉम द लोअर बैक, ठीक है ना, लोअर बैक टू टोज इंडिकेट, lower back to toes indicate, toes not toe, toes indicate involvement of spinal segments. Of what spinal segments? L1 and L2, T11, T12, L1, L4, L5, S1, S2, S3, D option है L3, L4, L5, E option है L4, S1, S2, S3। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने दिए थे। ये बेसिक क्वेश्चन है ना, ये डायरेक्ट क्लिनिकल क्वेश्चन तो आप नहीं कह सकते इसको। इन्होंने क्लिनिकल एनाटॉमी का क्वेश्चन पूछा है, ये सामने लिखा हुआ है। रेडिएशन ऑफ द पेन फ्रॉम द लोअर बैक टू द टोज इंडिकेट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्पाइनल सेगमेंट। अब L1 L2 की डर्माटोमल सप्लाई आपको मालूम होनी चाहिए कि वो किस डर्माटोम में जाती है। T12 यानी उसकी रूट वैल्यू के लिहाज से आप निकालेंगे ना इसको, इसका जवाब तो फिर वही बनेगा ना। एरिया बहुत बड़ा है,
रोल बैक टू द टोज। T11 T12 L1 है, L4 L5 S1 S2 S3 है, L3 L4 L5 है, L4 S1 S2 S3 है। आसान सी बात है, इसके मार्क दें, इसको दें, इसको दें कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है, इनमें से एक सही है, आप बता दोगे, वो तो जाहिर बात है। लेकिन चॉइसेस में बड़े क्लोज हैं, आसान काम नहीं है। पहले तो सेगमेंट याद करें, सेगमेंट क्या थी, रूट सप्लाई क्या थी उसकी, फिर उसके बाद वो नर्व जो क्रिएट होती है उससे उसकी क्या सेगमेंटल सप्लाई थी, ये रूट वैल्यू थी, उससे ये निकलेगा जवाब, वरना तो नहीं निकल सकता। तो यहाँ तक जो है ना 5 ये मैंने लिए हैं सेशन, इसका मकसद सिर्फ ये आपको बताना कि अगर आप नॉलेजेबल होकर FCPS पार्ट 1 करते हो तो आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि पार्ट 2 में जो ट्रेनिंग सुपरवाइज़र है वो फिर क्या करता है कि जब आप आते हो उसके पास ट्रेनिंग के लिए, तो वो जब राउंड कर रहा होता है या पेशेंट डील कर रहा होता है, तो वो फिर क्या करता है कि वो बेसिक्स से निकाल के आपसे सवाल करना शुरू कर देता है। तो आप नहीं बताते हो तो गुस्से में आ जाता है, आपने FCPS पार्ट 1 किया, आपको नहीं पता, बार बार ये टोकेगा आपसे, ये आपको नहीं मालूम, इसकी फिजियोलॉजी नहीं पता, इसकी ये नहीं पता। आप कहेंगे मैं भूल गया, भाई भूल कैसे गए, ये तो अब क्लिनिकल सेशन चल रहे हैं ना, इसमें तो आप ज़ाहिर है पार्ट 1 करके पार्ट 2 करने के लिए आए हैं ना, माफ़ी की गुंजाइश ही नहीं है कोई। इसलिए मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, पासिंग करना FCPS का, देखें इसमें 3 प्रॉब्लम्स हैं। नंबर 1 कि पास करना है एग्जामिनेशन को, दूसरे ये जो लोग चाहते हैं उनकी बात हो रही कि वो शॉर्टकट इस्तेमाल करेंगे तो, और या ये इसको आप कहते हैं कि गैस पेपर प्रैक्टिस करते रहे, आखिरकार जो है ना वो कोई 700-800 MCQ करके वो फिर वो तैयार हो जाते हैं कि चलो इम्तिहान दे देते हैं, मगर ज़ाहिर बात है कि वो नॉलेजेबल तो नहीं होते हो। चलो उन्होंने स्कोर भी ले लिया, फिर अगर कोई इन्होंने बात की सुपरवाइज़र ने तो वो तो नाराज़ हो जाएगा, बहुत सख्त नाराज़गी इख्तियार करेगा ना आपसे, नॉलेजेबल नहीं हुआ। चलो आप पास हो जाते हो, जब पास होने का दूसरा मरहला पता है इससे भी खतरनाक है कि आप सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हो मेडिसिन अलाइड में से कोई एक, सबसे आसान इसमें से जो ऑप्शन होता है वो इंटरनल मेडिसिन होता है, उसके क्योंकि ज़्यादा स्लॉट्स हैं, फिर बाद में चेंज करता है आदमी, चलो वो एक अलग बात है, लेकिन इंटरनल मेडिसिन में बहरहाल काफ़ी स्लॉट्स हैं, लेकिन इतने नहीं है कि वो समूह दें, सारे के सारे कैंडिडेट्स को नहीं कर सकते, एंटरटेन नहीं कर सकते। फिर आप चौथी चीज़ पे जाते हैं कि कहाँ सबसे अच्छी ट्रेनिंग होती है, कौन सा अच्छा सुपरवाइज़र है, इस पर जाना पड़ता है आपको। और जब वो ले लेता है आपको, तो फिर आप उसके साथ जब काम करते हैं ना, वही अहम काम होता है। 3 साल या 4 साल जो आप काम करते हो, तो वो आपको घिस घिस के जो है ना कुंदन बना देता है। इसकी बहुत सारी मिसालें हैं जो सुपरवाइज़र जिनको मैंने देखा है, मैं आपको बता रहा हूँ, उनके जितने भी कैंडिडेट हैं सारे के सारी पूरी वर्ल्ड में कामयाब हुए। इसकी जो अल्टीमेट एग्जाम्पल है वो शफीक कुरैशी साहब थे, हमारे बहुत सख्त मिजाज प्रोफेसर हैं, उनके साथ काम करने को तैयार ही नहीं होता था। प्रोफेसर इसाक शेख साहब हैं, उनके साथ काम करने को तैयार ही नहीं होता था। उसके बाद नंबर 9 में आए जो जनरेशन वाइज चल रहा है, फिर इसाक शेख साहब को लेने चले, फिर शफीक कुरैशी साहब को ले लें, फिर डाउन 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 नीचे आए। उसके बाद मेरी बात कर रहा हूँ अपनी, मैं बहुत सख्त मिजाज आदमी था, तो मेरे साथ अब तक सिर्फ 2 कैंडिडेट जो थे उन्होंने फ्लेट किया, मजबूरन, उन्हें आदमी कोई नहीं मिल रहा था, तो फिर वो मेरे पास आना पड़ा उन्हें। फिर मैंने जब सख्ती शुरू की तो भाग गए वो, उन्हें सुपरवाइज़र ही चेंज कर दिए। अल्लाह पाक उन्हें कामयाब करे, मैं तो नहीं कहता, मतलब उनके लिए तारीफ़ी जुमले ही अदा कर सकता हूँ। अच्छा, मैं मतलब सुपरवाइज़र नहीं हूँ, सख्त मिजाज हूँ, और मैं छोड़ता नहीं हूँ किसी को जब तक कि उनकी टांगें टूट जाती हैं, बुरा हाल हो जाता है। मेरे साथ जो काम करते हैं वो बहुत परेशान होते हैं। मैं हर चीज़ के ऊपर जाने की कोशिश करता हूँ, उसे क्लियर करके जब तक नहीं होती है वो छोड़ता ही नहीं हूँ, मैं उसे क्लियर करके छोड़ता हूँ। तो इसलिए आपसे गुजारिश ये है, मेरी तो खैर बात ख़त्म हो गई है,
क्योंकि मैं तो अभी ये काम नहीं करता, अब तो मैं ज़ाहिर सीनियर एग्जामिनर होता हूँ, वो भी मेरे 2 साल और 1.5 साल 2 साल और होंगे। लेकिन अभी जो है ना वो आपको गाइडलाइंस चाहिए थी, तो वो उस पर मैंने आपको बता दिया। इसके लिए ज़हनी तौर पर आप तैयार रखिएगा अपने आप, ठीक है। अब जो है ना अगला जो है ना ये सेशन होगा, जो मेरा काम नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। मैंने जैसे मॉड्यूल एक चूज़ किया है, मैं स्टार्ट करता हूँ अपने मॉड्यूल को पढ़ना, मतलब मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, तो मैं मॉड्यूलर वेज पढ़ना चाहता हूँ। तो मैंने क्या है कि स्केलेटल सिस्टम ले लिया पहले। अगर मैं स्केलेटल सिस्टम से स्टार्ट कर रहा हूँ तो मुझे उसकी जनरल एनाटॉमी आनी चाहिए, उसकी ग्रॉस एनाटॉमी आनी चाहिए स्केलेटल सिस्टम। फिर मुझे उसकी फिजियोलॉजी आनी चाहिए, बोन मेटाबॉलिज्म की बात हो रही है। फिर मुझे उसकी जो है ना बायोकेमिस्ट्री आनी चाहिए, कोई जहाँ उससे अप्लाइड जो साइड है बायोकेमिस्ट्री। फिर मुझे उसकी अप्लाइड फार्माकोलॉजी आनी चाहिए, क्योंकि इसको थेरेपेटिक्स कहते हैं जहाँ अप्लाई हो रही है। और उसकी जो है जनरल पैथोलॉजी आनी चाहिए, या उसकी जो स्पेसिफिक पैथोलॉजी आनी चाहिए। ये मॉड्यूलर सिस्टम है, अभी क्लिनिकल नहीं है कोई भी चीज़ ना, वो तो हमने नहीं डाली है, वो तो छोड़ दिया आपने, वो तो आप छोड़ें पार्ट 2 के लिए। लेकिन ये कि ये 4-5 चीज़ें इस मॉड्यूल में आएंगी। स्केलेटल सिस्टम को फर्स्ट कर स्टार्ट कर रहे हैं तो इस तरह करें, फिर उसके बाद मसल्स को स्टार्ट करें, और फिर इस तरह से आगे नीचे उतरते चले जाएँ। जब ज़्यादा बात विसरोलॉजी में आएंगे, आप विश्वास में आएंगे, तो फिर विश्वास ये मतलब ये तो बहुत सिस्टम वाइज विश्वास को स्टडी करना पड़ेगा ना, कि नर्वस सिस्टम में ये है, GI ट्रैक्ट है, फला है, ये वो। उसमें जो है ना सारा का सारा है, जो वहाँ का जनरल नोट पे अप्लाई हो रही है तो अप्लाई कर दें, और उसके बाद आगे बढ़ें, उससे फिजियोलॉजी अप्लाई करें, उसकी पैथोलॉजी अप्लाई करें, बायोकेमिस्ट्री अप्लाई करें, और थेरेपेटिक्स अप्लाई करें। तो फिर ये जो है ना ये मॉड्यूल मुकम्मल होगा। और फिर इसके MCQs में गलती का इम्कान नहीं होता, बहुत मुश्किल है कि आप गलती करोगे, और क्लियर कर जाते हैं लोग बड़े आसानी के साथ। ये वो तरीका है जो मैंने अडॉप्ट किया, या मैंने लोगों को बताया है कि भाई इस तरह करें, इसमें पैसे लगाएं। 1-1 लाख रुपए लेते हैं ये लोग, प्राइवेट इंस्टीट्यूट वाले, तो अच्छे इंस्टीट्यूट ये बना के रखे हैं उन्होंने, तो 1 लाख लेते हैं, 2 या 3 महीने लेते हैं, 5 या 6 कैंडिडेट अपने पास रखते हैं, बस उन्हीं को भी स्टडी करवाते रहते हैं। 3 घंटे 4 घंटे कम से कम वो डेली बेस पे कराते हैं, या हफ्ते में 3-4 दिन तो वो करते हैं, बहुत लंबे सेशन करते हैं, और MCQ पर दर MCQ कराते रहते हैं, फिर दोहराते हैं, फिर कराते हैं, फिर दोहराते हैं, फिर कराते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो उसके बाद क्या होगा, वो नॉलेजेबल आपको बनाना चाहते हैं, नहीं, नॉलेजेबल नहीं बनाना चाहते, वो आपको क्लियर कराना चाहते हैं, एग्जामिनेशन को क्लियर कराना चाहते हैं। अब आपके ऑप्शन है आपके पास। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।